Hello viewers, a very warm welcome to YK Tripathi classes. I am Anukul and I am going to take you through to your group 1 paper 5, which is business laws and ethics. Right. Talking about myself, we have joined hands to cater to get you all, everything what is required for CMA intern. And right now I have been given the responsibility to cover up the syllabus of business laws and ethics. With these words, I would like to tell you more about myself, that I am also a company secretary and a lawyer. So, going through, first of all, we will talk about whatever is the syllabus of your curriculum. This group 1 paper 5 business laws and ethics has been divided into 4 sections. Divided in 4 sections. The section 1, this comprises of commercial laws. And this covers the weightage of 30% of your marks. Then there is section 2, that is industrial laws. In fact, these are section A, and section B. What are these commercial laws and industrial laws? We will be talking later. Right now, I am going through just an introduction. This section of industrial laws, this covers 15% of the weightage of the total syllabus. Then comes section C. सेक्शन सी में आपके पास है कॉर्पोरेट लॉज. बेसिकली दिस कंप्राइजेस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. And these corporate laws will cover 40% of your syllabus and have the marks of 40% weightage. Then there is section D. Section D comprises of business ethics, and business ethics comprises of 15% of the total syllabus and total marks. Now, within these 4 sections, the whole of the syllabus is covered. Now, one by one, I will take you to what topics we are going to study. If we come back to section A, section A said that we will be covering commercial laws. Right. In commercial laws, the first topic that we are going to take is introduction to law and legal system in India. इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया. और यही एक जो चैप्टर है आपके कोर्स में, ये खुद 5% का वेटेज कैरी करता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम, तो यहां पे वॉट एवर वी आर गोइंग टू टेक इज, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू गाइज इज कि हाउ डिड लॉ इमर्ज. मतलब ये टर्म जो लॉ है, इसके बारे में कहां से शुरुआत हुई, राइट? इसका मतलब क्या है? लाइक सपोज इफ वी टॉक अबाउट ट्रैफिक रूल्स, these are also laws, right? If we travel by a car, then we have got a motor vehicles act, right? If we do something wrong and which is punishable, then we have got IPC, which is now BNS. So हम लोग इस पे बात करेंगे और डिटेल में करेंगे. लीगल सिस्टम क्या है? लीगल सिस्टम का मतलब है कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स. सबसे पहले अगर कोई केस हमें फाइल करना है,
तो वो क्या हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे या फिर हम उसको लेके कहीं लोअर कोर्ट में जाएंगे जिसपे ज्यूरिसडिक्शन हो। ये टर्म जो होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के तरह और भी टर्मिनोलॉजीज वी विल बी कवरिंग इन योर करिकुलम। तो 5% का वेटेज ये ले गया। सेकेंड टॉपिक इन सेक्शन ए दैट वी विल बी कवरिंग इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और पूरे सेक्शन ए में सबसे ज्यादा वेटेज यही टॉपिक लेके आता है मार्क्स का। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मास्टर हो गए देन यू विल फील कि जो लॉ है, जो लॉ एप्लीकेबल है व्हेन यू विल बी बिकमिंग प्रोफेशनल, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एप्लीकेबल होता है अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट, राइट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग उठाएंगे, लाइक देयर इज अ सेक्शन 10 that talks about essential element of a valid contract। मतलब ये कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे वी विल बी टॉकिंग इन दिस सेक्शन 10 व्हेन वी विल बी कवरिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अभी के लिए आपको ये जानना है कि 10% वेटेज पूरे पेपर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही आएगा। Then third point or third topic is Sale of Goods Act। In 1930, Sale of Goods Act 1930, right? तो इस एक्ट का नाम ही ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे गुड्स के सेल होने पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके बारे में क्या लॉ होना चाहिए वो बताया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट आपको बता दूं कि इनिशियली सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 was formerly it was part of the कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था। बाद में समय के हिसाब से जैसे जैसे सेल ऑफ गुड्स बढ़ता गया वैसे वैसे ये नीड महसूस हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से इसको एक अलग ही एक्ट बना के एक नया लॉ बना देना चाहिए। दैट इज व्हाई इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इसी सेक्शन पे पूरा सेल ऑफ गुड्स विल बी डिपेंडिंग। व्हाई? बिकॉज इस सेक्शन में द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इज कंटेन्ड। भाई जिसको हम बेचना चाहते हैं, जिन चीजों को हम बेचना चाहते हैं, जो भी कुछ इस गुड्स की डेफिनेशन पे आ जाएगा उसी पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। यू शुड लर्न इट लाइक दिस, सिंप्लीफाई इट, राइट। Whatever will form part of this definition, on that this whole sale of goods act will be applicable, otherwise it will never be applicable on any other thing which is outside the purview of section 2 subsection 7. So moving further, fourth topic is of commercial law section A is Negotiable Instruments Act। Negotiable Instruments Act 1881। Talking about this, this is also a very interesting topic. Why? Because when we enter into a contract, जब भी हम किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे आप जब सेक्शन 10 पढ़ेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो कि एक टर्म है जिसको कहते हैं कंसिडरेशन। आई विल बी टीचिंग यू ऑल दिस। कंसिडरेशन, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग इन
रिटर्न, राइट। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी के लिए कोई काम करेंगे तो बदले में उससे हमें कुछ चाहिए होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा कि एक किसी के बदले कुछ करे, उसके बदले में वो भी हमारे लिए कुछ करे। When I am selling something to somebody, then in return I need some money in cash or kind. अब मनी के टर्म्स में डील करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की बात हम करते हैं, those instruments are known as negotiable instruments, right? Because जैसे if I am selling something to somebody, he is offering me a check, तो check, since I am accepting that check on behalf of money, then sorry, since I am accepting that check on behalf of the money, then that check itself becomes a negotiable instrument, right? इसी तरह और क्या क्या चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बनती हैं वो वी विल बी टॉकिंग। एंड एक चीज आपको बता दें, हो सकता है दिस माइट बी एडिशनल विद रिस्पेक्ट टू सीएमए इंटर, but in life it may be useful. There is a section 138. Section 138 talks about that if at all any negotiable instrument, especially check, if at all किसी ने हमें कोई चेक दिया और वो चेक बाउंस हो जाता है तो दैट बिकम्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट? तो जैसे हम लोगों ने कॉमन पैरालेंस में सुना है कि चेक बाउंसिंग का केस हो गया, तो चेक बाउंसिंग का केस कहां होता है? सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में होता है। मूविंग फर्दर, another section from section A, commercial laws. Next topic is that we are going to cover is Indian Partnership Act. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ यहां पे ये बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखा, वो 1930 में आया था, राइट? सिर्फ 2 साल बाद ही पार्टनरशिप एक्ट भी आ गया। विद दिस वी कैन ड्रॉ इन्फेरेंस कि बोथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोथ वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। 1930 में जरूरत महसूस हुई कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट को वहां से अलग करके एक नया एक्ट बना दिया जाए, और फिर 2 साल बाद ही यह महसूस हुआ कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एक्ट जो है, उसको भी एक नया एक्ट बना देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से उसको हटा दें। इट मींस कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो कुछ भी कवर होगा दैट इज आल्सो रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, बिकॉज इफ आई एम सेलिंग समथिंग, सेलिंग सम गुड्स व्हिच फॉल अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, हम बेच रहे हैं तो उसके बदले में हमें किस प्रकार से पेमेंट लेना है या क्या टर्म्स रखने हैं, वो जो एक लॉ है वो लॉ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा, बट इट आल्सो रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज इफ आई एम सेलिंग समथिंग एंड समबडी इज गिविंग मी समथिंग तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है। सिमिलरली पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट, agreement between whom? Agreement between the persons who are like minded to make a partnership firm. अब मान लीजिए मिस्टर ए, बी एंड सी, ये तीनों मिलके कहते हैं कि हमें पार्टनरशिप फर्म बनानी है, पार्टनरशिप फर्म बनानी है, राइट? तो फर्म बनने के लिए सबसे पहले किस प्रकार से फर्म चलेगी, फर्म का नाम क्या होगा, कितना कैपिटल इन्वॉल्व करना है, राइट? ये सारी चीजों पे these 3 persons needs to come to an agreement, और जब अग्रीमेंट पे आएंगे, राइट, एंड व्हेन यू विल स्टडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताएंगे कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन अग्रीमेंट enforceable at law is known as a contract। यानी पार्टनरशिप फर्म में जो अग्रीमेंट बना, अगर उसको अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन जैसे ही अग्रीमेंट का कराएंगे तब फिर वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट विल कन्वर्ट इनटू अ पार्टनरशिप डीड, राइट? और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही पार्टनरशिप डीड विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसकी डिटेल्स आपसे तभी बात करेंगे जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे।
So moving further, the sixth chapter in section A of commercial laws is limited liability partnership act 2008. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, राइट। हम लोग इसको ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ये 5% ऑफ द सिलेबस इट विल कैरी, राइट। नाउ एनालाइजिंग पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में। देयर आफ्टर कंपनीज एक्ट आया 1956 में, राइट। इसके पहले भी कंपनीज एक्ट चलते थे, बट मोर कॉमन इज 1956। ये जो एक्ट था, इसमें एक टर्म था अनलिमिटेड लायबिलिटी, राइट। और ये जो एक्ट था, इसमें एक फीचर था, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द कंपनीज वाज लिमिटेड लायबिलिटी। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ना, ये एक हाइब्रिड टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन के उभर के सामने आया। बिकॉज हर प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस में क्या था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती थी, जिसका मतलब है कि यदि किसी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी है तो फर्म की संपत्ति के साथ साथ फर्म के जो पार्टनर्स हैं उन सब की भी पर्सनल लाइबिलिटी जनरेट हो जाती थी, राइट। और कंपनीज एक्ट में क्या है कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्संस हु कंप्राइज ऑफ इट। जिन लोगों ने मिलकर कंपनी को बनाया है, कंपनी उनसे एक सेपरेट एक एग्जिस्टेंस में चलती है, सेपरेट लीगल एंटिटी जिसको कहा जाता है। तो कंपनी की लाइबिलिटी इज ओनली द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, नॉट ऑफ द मेंबर्स, जो उस कंपनी के मेंबर्स है, जो कंपनी को बनाते हैं या जो कंपनी के मालिक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब इट इज अ पार्टनरशिप हैविंग फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बट विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब ये कि इफ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ये अगर कोई बिजनेस करती है या कोई भी ट्रांजैक्शन किया, तो यदि कि इफ द एलएलपी सेज दैट आई विल डू समथिंग फॉर मिस्टर ए, राइट, मिस्टर ए सेज ओके आई विल पे दिस अमाउंट इफ यू डू समथिंग फॉर मी। अगर बाद में एलएलपी द्वारा वो काम नहीं किया गया तो मिस्टर ए कैन नॉट मेक द पार्टनर्स ऑफ दैट एलएलपी पर्सनली लायबल। इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये कंसेप्ट आया है, 2008 में आया है इसलिए, और कंपनीज एक्ट 2013 उसके भी बाद में आया है। इट मींस जो कंपनीज एक्ट पहले था और पार्टनरशिप एक्ट था उसके भी पहले, उन दोनों को जोड़ के ये एक नया कंसेप्ट बनाया गया था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो आपके कोर्स में है और 5% वेटेज ये कवर करता है, राइट। तो दिस विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सेक्शन ए व्हिच इज कमर्शियल लॉज, राइट। ओनली इंट्रोडक्शन एस्पेक्ट, वी विल talk on this in detail in the future classes. Right. So these 6 topics will cover 30% of your syllabus and 30% of your marks. तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Next topic is, next section that in your course is section B, industrial laws. इंडस्ट्रियल लॉज का मतलब ये हुआ कि जो भी इंडस्ट्रीज बनेंगी इंडिया में, उन इंडस्ट्रीज के ऊपर किस प्रकार से लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए या किस किस एस्पेक्ट पे लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, उस पे हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सपोज
या कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है या सोल प्रोप्राइटर है, वो व्यक्ति कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी पड़ेगी, जिसको कि हम फैक्ट्री भी कह सकते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बना दिया गया। इसमें यह बात कही गई कि किस प्रकार के यूनिट को हम फैक्ट्री बोलेंगे, एक फैक्ट्री में कितने मिनिमम एम्प्लॉइज काम करने चाहिए, उसमें कितने मेल कितने फीमेल होने चाहिए, राइट, प्लस कौन सी प्रकार की सुविधाएं फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को दी जानी चाहिए, क्या सेफ्टी इंश्योरमेंट्स लेने चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसे हजार्डस फैक्ट्री हो, सपोज करिए कि न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें काम करने वाले व्यक्ति को रेडिएशन से उसकी कई पुश्तों तक वो रेडिएशन असर कर सकता है, तो उसको इस रेडिएशन से बचाने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, ये सारी चीजें फैक्ट्रीज एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक, एंड दिस फैक्ट्रीज एक्ट, दिस विल कवर this section B, industrial laws, this will cover 15% of your total marks. ठीक है। Then next topic is payment of gratuity. Act 1972. Gratuity word जो है ना, that is being derived from the word gratuitous. Gratuitous का मतलब ये हुआ कि हम किसी के प्रति अपना आभार कैसे व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर ए, ही वर्क्स फॉर ABC लिमिटेड या कोई भी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म फॉर 30 years. सपोज करिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली. सपोज मिस्टर ए इज गिवन हिज 30 प्रेशियस years टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ABC लिमिटेड. तो जब ये नौकरी छोड़ के इनको मतलब सेवानिवृत्त किया जाएगा या रिटायरमेंट होगा इनका, तो उस समय क्या ये फर्ज नहीं बनता ABC लिमिटेड का कि जिस व्यक्ति ने इस कंपनी को इतने लंबे समय तक सर्व किया, उनको ये कुछ ग्रेटिफाई करे, राइट? तो जो भी अमाउंट उस समय दिया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रेच्युटी. अब मगर होता क्या है कि ग्रेच्युटी के लिए कौन एलिजिबल है, किस प्रकार से ग्रेच्युटी देनी चाहिए, एम्प्लॉयर का कितना उसमें योगदान होना चाहिए, प्लस इनकम टैक्स पे इसका क्या असर पड़ना चाहिए, इन सबको एक जगह लाके एक एक्ट बनाया गया, which is known as Gratuity Act 1972. तो जब हम लोग यहां पे पहुंचेंगे, we will cover it in detail. इतना हम लोग पढ़ लेंगे कि आपका CMA इंटर का पेपर वेरी इजीली निकल जाएगा. थर्ड टॉपिक इसमें जो है वो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड and miscellaneous provisions act 1952, right? Employees provident fund and miscellaneous provisions act है, इसमें main point is employees provident fund. When you will be studying income tax, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा ओल्ड रेजीम जो हुआ करता था उसमें प्रोविडेंट फंड का एक डिडक्शन मिला करता था. इफ एट ऑल इट इज इन योर कोर्स, तो आपको वो पढ़ना होगा. तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? दिस फंड इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय. सपोज हम पिछला ही एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए जो है वो ABC लिमिटेड में काम कर रहे हैं. अब मिस्टर ए को मान लीजिए ही ड्रॉज 50,000 पर मंथ सैलरी, राइट? 50,000 पर मंथ सैलरी अगर एक साथ मिस्टर ए को दे दिया जाए, तो देयर आर चांसेस कि ही माइट बी एबल टू सेव और ही माइट नॉट बी एबल टू सेव समथिंग आउट ऑफ इट. तो सेविंग की हैबिट को बढ़ावा देने के लिए यहां पे क्या किया जाता है कि इस लॉ में ये मेंशन किया जाता है कि एम्प्लॉयर कुछ पोर्शन सैलरी से एम्प्लॉय के काटे, कुछ पोर्शन कहीं कहीं पे अपने से भी मिलाए और एक अलग कॉर्पस उस एम्प्लॉय के नाम पे तैयार करता चले, ताकि जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा, उस समय उसके पास एक रेडीमेड एक हैवी कॉर्पस बना हुआ तैयार रहेगा, सो दैट
पोस्ट रिटायरमेंट जब उसके पास अब सैलरी नहीं होगी तो ये अमाउंट वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, टू लिव ऑनरेबल लाइफ, वो खर्च कर सके, राइट। तो वॉट एवर इज कंटेन्ड इन दिस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हेन वी विल कम थ्रू दैट स्टेज। राइट नाउ ओनली कि इसका पर्पस क्या है। Next point, next topic which we will be covering is employees state insurance act 1948। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, यहां पे इंश्योरेंस वर्ड देख के ही ये समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस की बात हो रही है, राइट। तो होता क्या है कि व्हेनेवर समबडी इज वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, तो देयर आर चांसेस, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही हजार्डस एक नेचर का काम होता है, कहीं पे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होनी है, देयर आर सर्टेन केमिकल्स जिसको कि हम मिला जुला के कहीं पे भी कुछ रिएक्शन करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सपोज हम बात करते हैं एक आयरन मैन्युफैक्चरिंग की, हम आयरन को लेके उसको गर्म करेंगे, गर्म करके फिर उस पे हथौड़े से थोड़ा चलाएंगे जिससे कि वो एक पार्टिकुलर शेप अडॉप्ट करे। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां हो सकता है कि लोहा गर्म करते समय हो सकता है एम्प्लॉय बेचारा जल गया, या फिर ये भी हो सकता है कि हथौड़ा मारते मारते हो सकता है अपने हाथ पे मार ले। तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस। उसके बाद एम्प्लॉय की वर्किंग कैपेसिटी वो हमेशा के लिए हो सकता है टेम्पररली या हो सकता है परमानेंटली उस पर इफेक्ट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी अर्निंग तो बंद हो जाएगी, तो उस सिचुएशन को इंश्योर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, राइट। तो अब इसमें डिटेल में भी वी विल गो व्हेन वी विल बी कवरिंग ऑल दिस। अब पॉइंट टॉपिक 1 to 4 सेक्शन बी का, दिस विल कलेक्टिवली कवर 10% ऑफ द मार्क्स, राइट। Then fifth topic in section B and 11th topic overall, right, ये कवर करता है the code of wages 2019। recent law है ये code of wages। इसको बनाने के पीछे रीजन ये है कि right remuneration should be given for the right work। मतलब ये कि कोई व्यक्ति जितनी मेहनत कर रहा है तो ही शुड बी इक्वली रेम्यूनरेटेड। ऐसा ना हो कि सोसाइटी में अनइवन हो जाए कि काम आप ज्यादा ले लो और प्राइस उसको कम ही मिले, राइट। तो इसको बचाने के लिए ये लॉ बनाया गया है और केवल ये लॉ 5% वेटेज कवर करेगा। टोटल वी हैव सीन कि 45% हो गया सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के। मूविंग फर्दर, सेक्शन सी, कॉर्पोरेट लॉज। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैज बीन कवर्ड बाय दिस टॉपिक। 40% मार्क्स आपका वेटेज ऑफ द सिलेबस यही लेके आता है, राइट। इसमें केवल एक टॉपिक पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 हमें पढ़ना है। वी ऑल नो कि कंपनीज एक्ट 1956 पहले चलता था, मगर अब कंपनीज एक्ट 2013 चलता है। तो देयर आर सर्टेन चेंजेस जो पुराने एक्ट से नए एक्ट में लेके आया गया है, वो भी हम जानेंगे। और जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में कवर्ड है, क्योंकि कंपनीज एक्ट इज अ वेरी वास्ट थिंग, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू नो एज अ CMA इंटर स्टूडेंट, दैट विल बी टॉट ओवर हियर बाय मी। राइट, इसमें बेसिकली वी विल सी कि व्हाट इज द कंपनी, बेसिक थिंग्स, व्हाट इज अ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, राइट, concept of corporate wheels, corporate wheel, then incorporation, right, then what are meetings, कंपनी में मीटिंग्स कैसे होती हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होती है, मेंबर्स की मीटिंग कैसे होती है, minutes, whatever is being decided in a company has been is to be recorded in a certain format that is known as minutes,
राइट? डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये लोग कैसे कंपनी को चलाते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड, वॉट एवर इज सफिशियंट फॉर यू एज अ CMA इंटर स्टूडेंट. मूविंग फर्दर, 40% टोटल सिलेबस ये कवर करेगा. तो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, इन तीनों को मिला के टोटल 85% आपका कोर्स कवर हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा कंपनीज एक्ट 2013 वेटेज कैरी करता है. मूविंग फर्दर टू सेक्शन डी. सेक्शन डी जो है दैट टॉक्स अबाउट बिजनेस एथिक्स. Right. Ethics basically is a philosophical type of thing, right? कि what should be done, what should not be done, what is morally correct, what is incorrect, what decisions we need to take, right? In normal life also, not only in business. तो ethics तो केवल उसी से relate करता है. But business में ethics की क्या requirement है? Because when we are doing some business, so we are offering something to the society, because if I am selling a product, so society is going to use that, mankind is going to use that. Apart from men, the animals, उनके लिए भी products बनाए जाते हैं. तो ethics हमारा ये कहता है कि what type of products we should use. We should manufacture only those things, using the correct ingredients or not. Then we should treat, how should we treat humans with whom we are dealing during the businesses. Sometimes, life में situation आएगी, because it is very easy to choose between good and bad. क्या सही है, क्या गलत है, भले ही हम गलत करें या भले ही हम सही करें, but whenever we are doing something, we know that this is good or this is bad. But जो बिजनेस एथिक्स आपको यहां पे पढ़ना है, वहां पे यू विल बी इन अ सिचुएशन दैट इज अ डायलेमेटिक सिचुएशन. डायलेमेटिक सिचुएशन आ जाती है कभी कभी. डायलेमा का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें क्या करना चाहिए. और ये सिचुएशन तब आती है जब वी हैव टू डिसाइड बिटवीन गुड एंड गुड. हमारे पास दो रास्ते हैं, दोनों ही सही हैं, हमें उन दो सही रास्तों में से कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए. ये सिचुएशन आएगी तो हम एक एथिकल डायलेमा में होंगे, और उसमें से कैसे निकलना चाहिए या व्हाट शुड वी डू, ये हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे. इसी प्रकार से बैड एंड बैड सिचुएशन भी आ सकती है. ये किस प्रकार की सिचुएशन होती है? वी विल डील विथ ईच एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग when we will be reaching that place. तो आप सोचिए कि हमारे सामने एक सिचुएशन आ गई जो कि हमें करना ही है, और हम जानते हैं कि अगर हमने ये काम किया तो वो गलत काम होगा. फिर हमें पता है कि उसके साथ जो दूसरा ऑप्शन है वो भी गलत है. अब कौन सा गलत काम हम करेंगे या कौन सा सही काम हमको करना चाहिए, वहां हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स में कि वो कैसे इस सिचुएशन से डील करना चाहिए. सो विद दिस we come to an end to the introduction aspect of the syllabus. See you in next class. Thank you so much.